See what we did in last class. Let me first of all quickly recall what we did. We will do it quickly and then we'll do the practical. We first of all we learned what is classification, and in classification we understand that we have to classify the things into two or multiple things. Like if we classify into two, then it is called binary classification, or if we classify into multiple, then it is called multiple classification. So this is the binary classification we learned, like just no, male, female. If you classify something like that, that is called binary. And if you want to classify into multiple, more than two outcomes, then it is called multi-class classifier. So this way already covered. Okay. After that, there are two kinds of learners: lazy learner and eager learner. It depends upon the lazy learner classification is done on the most of the related data stored in the training data set. It means in lazy it takes less time in training but more time in prediction. On the other hand, in eager they took more time in training but less time in prediction. So this also we covered. After that, uh, we covered what are the various kinds of classification. So linear model and non-linear model, there are two kinds of classification. Linear is just like that, if you want to segregate it, the data into binary, and there is a straight line which will responsible for segregated the data into two. That is what we call linear model. And if anyhow, if our data is just like uh, that it can't be separated out by this straight line, so a curve is needed for to segregate the data. That is what we call non-linear model. So after that, we also learned what we have to evaluate in the classification model. You just carefully listen again. This is very important. Basically, what I'm saying here, whenever we do the classification, we have to represent the result into some ways. So this is the first: log loss and cross entropy loss. It is used for evaluating the performance of a classifier whose output is a probability value between 0 and 1. For a good binary classification model, the value of log loss should be near to 1, and the value of the log loss increases if the predicted value deviates from the actual value, and the log loss value represent a higher accuracy of the model. So log loss is one of the value, and how it is calculated we will see. It is nothing but the probability log loss. So log loss we calculate if, and its value should be near to equal to 0 for a good binary classification model. If its value is more than 0, it means the classification algorithm that we used is it is not a best fitted for that particular model or for that particular data set. So log loss is one thing that you have to understand. Log loss, or its another name is cross entropy loss. So how to calculate this, we will see it later on. Now another thing that we have to learn in confusion matrix. So in logistic regression or classification algorithm, we used confusion matrix also. Confusion matrix is one of the very important result that we get after the classification. And what it shows, it is also called error matrix. This is very important. This matrix is also called error matrix. The matrix consists of prediction result in a summarized form, which has a total number of correct prediction and incorrect prediction, and it is look like this. So let us suppose predicted positive and actual positive means the result is positive. Like let us suppose we are searching for a boy or a girl. So if boy comes, we are searching for a boy from a set of boy and girl. So if the boy come, we are searching for the boy, right? Out of the boys and girls. So actual is boy, but predicted is also boy. So this is what we call true positive. This is what we call true positive means, because whatsoever we want to predict like boy, and our algorithm also predicted it like a boy.
So it means both actual and predicted both are true. So this term is called TP, true positive. Now predicted positive but actual is negative. Like let us suppose the actual is a girl, but your algorithm predicted it as a boy. So this is a false positive because predicted is positive. That's why it is called false positive. Now, predicted is negative and actual is positive. Like he is a boy, but your prediction say it is a girl. So it is called false negative. Similarly, you are predicted negative, but actual is negative. Means actual is girl and your prediction negative is also a girl. That is what we call true negative. So on the basis of construction of this matrix, you are able to calculate the accuracy. This is the formula for accuracy, that is TP plus TN, that is this these two values, true positive and true negative. You have to take it at the numerator, and total population, that means this plus this plus this plus this at the denominator. So by this how, because this is a table which is generated by the program itself. So once you have this table, if somebody asks you what is the accuracy, so accuracy, to calculate the accuracy, although it is calculated by the system also, but you should have to understand how the accuracy is coming. It is coming by adding these two together and dividing by all these four, the sum of all these four. So this is very important. Again, there is a one parameter that is called recall. What does recall means? That is true positive upon true positive plus false negative. So recall is true positive upon true positive, true positive plus false negative. Yeah, means TP upon TP plus FN. If we predicted this is called recall. Out of the all positive cases, how much we predicted correctly. This recall means out of the total cases, out of the total positive cases, how much predicted correctly. This is what we call recall, and it should be as high as possible. So if it has a high value, that indicates your algorithm is good and acceptable. And another thing is precision. Precision is out of total positive classes, we have predicted correctly how many actual positive. See, there is a little bit difference in recall. Out of the all positive, how many are correctly? It should be high possible. And out of the all positive, we have predicted correctly. Here, out of the all positive, how much we predicted correctly, and here, out of the total positive classes, we have predicted correctly. That is TP by TP plus FP. Now, what is TP by TP plus FP? Means it is calculated by this. This is what we call row. So you have to remember this thing. Recall is calculated from the column, means this upon sum of this, and precision is calculated by this sum of this divided by sum of this. So by the row, by the column, you calculate the recall, and by the column, by the row, you calculate the precision. So this is very important. And once you have precision and recall with you, you can calculate the F measure. And F measure is nothing but twice of recall into precision upon recall plus precision. This also very important to mention in the algorithm, and its value also must be high for a good algo. So actually these parameters are needed to demonstrate, to express your result. Now many of you want to write a research paper. So in a research paper, after the analysis, what you have to present is these things: F measure, precision, the recall, and this, and this you have to further describe it in a table. As I told you earlier, this is the only thing that you have to present in the form of result for your research paper. Because most of the time what will happen in research paper, the result must be something fascinating. That is, if somebody saw that result, they have to think twice how this result, how you presented it. So this is up to you how to write it. But those
whosoever from you want to write a research paper on a logistic regression, yes, you can do, but you have to present in the result, because this is a result that is your result. And for to calculate that result, you know you can do several things. Let us suppose I am telling you what I want to convey to you. So this is the parameters, and one another parameter is also required for logistic regression is AOC ROC curve. So AOC ROC curve means area under the curve, AOC AUC, and ROC means receiver operating characteristic. So this is the characteristics, and in which the area under the curve, you know, classify how good your algorithm is. How? We will see. See, ROC curve is plotted with TPR, FPR, and TPR, true positive rate, and all these values. And by visualizing the ROC curve, you can, you can predict about the algorithm. How? We will see it. So at the end, I shared some data sets on which you can do. Someone of you have a doubt maybe कि सर ये तो ऑलरेडी हुए हैं, तो हम रिसर्च पेपर कैसे लिखें इसके ऊपर, या हमें तो ये सारा डाटा मिल जाएगा, हमें ये सारा कमांड्स भी मिल जाएंगी, तो अगर हम इसको रन कर दें तो क्या ये रिसर्च पेपर है? नहीं, दैट इज़ नॉट आ रिसर्च पेपर। तो तुम कहोगे सर फिर क्या फ़ायदा हुआ ये सीखने का, एफ मेजर, रिकॉल, प्रिसीजन और ये सब हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना ली, तो हमें क्या फ़ायदा है? आई विल टेल यू हाउ। लेट अस सपोज मैंने किसी भी बंदे का जिसने पहले काम किया हुआ है, जैसे कि ये एक हार्ट डिजीज प्रिडिक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट बाय मी, नॉट डन बाय मी, इट इज़ समबडी डिड दिस, बट उसने इस डाटा सेट के ऊपर कुछ कमांड्स लगाई और उसने ये रिज़ल्ट निकाल के दे दिए, बट उसको भी नहीं पता इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है, या चलो उसको पता भी है इस रिज़ल्ट का क्या मतलब है। अब हमारी रिसर्च कैसे होगी इसके ऊपर? देखो, इसके ऊपर रिसर्च ऐसे होगी, उसने इस डाटा सेट को एनालिसिस करके आपको दे दिया, लाइक ये रहा, ये डाटा सेट जो है ये एनालिसिस उसने करके दे दिया आपके पास, ये एनालिस्टिक पूरा आपके पास है। अब आपको रन करना तो आ गया, आपको डाटा भी चढ़ाना आ गया, सब कुछ आपको आ गया। अब आप में से कई बच्चे ऐसे पूछेंगे सर हमें रिसर्च पेपर लिखना है और हम कैसे लिखें? देखो, रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको रिजल्ट होने चाहिए। इस बंदे ने जो भी प्रोग्राम किया, इसने प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ ध्यान से देखो, इसने कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करी है? फर्स्ट थिंग, इसने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ किया है। दूसरा, आप ये देखो इसने क्या डाटा सेट लिया, उसने क्या स्प्लिटिंग रेशियो ली है, इसने स्प्लिटिंग रेशियो 80-20 ली है। अब आप क्या करो, आप इस तरीके से भी इसके ऊपर एक रिसर्च कर सकते हो कि 20 पर क्या रिजल्ट आए थे जब उसे स्प्लिट किया 80-20 पर, और जब तुम इसको 60-40 पे और 70-30 पे करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब डेफिनेटली एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ेगी या कम होगी। तो आप उसकी एक टेबल बनाओ कि ये टेबल है, जब मैंने 80 पे किया तो ये वैल्यू आई एक्यूरेसी की, और ये वैल्यू आई मेरी प्रिसाइज की, ये मेरी प्रिसीजन की, ये वैल्यू मेरी आई रिकॉल की। और फिर आप उसको 70-30 पे करो, और उसके बाद आप उसको 60-40 पे करो। फिर आप उसको कंपेयर मारो कि भाई जब हमने 20-80 पे किया तो उसके क्या रिजल्ट आए, और जो अब हमने किया वो उस पर क्या रिजल्ट आए। तो मतलब डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगी। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो देखो, इसका आउटपुट में ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आया है, तो आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिफरेंट आएगी। सो दिस हाउ एंड दूसरी बात, इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से क्या प्रिडिक्ट हो रहा है? आपके पास ट्रू पॉजिटिव आए हैं 658। आप मैनुअली भी कैलकुलेट करो, आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करो। कोई बंदा पूछे आपसे इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, तो मैंने आपको एक्यूरेसी के लिए बताया था, इन दोनों को जोड़ देते हैं और सबसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, लेट अस चेक क्या ये होता है। ओके, आई कैलकुलेटर। ओके, इसको आप मैनुअली भी करो। ये फिर चीज़ें आप अपने पेपर के अंदर शो कर सकते हो कि ये हमने सर सब कुछ करके देखा है। ये देखो जी, यह है 662, 662 इन दोनों को जोड़कर, और इसके अंदर मैं 662 में अगर मैं 88 और 1 भी जोड़ दूँ, 88 और 1 भी जोड़ दूँ तो आया 751। तो 662 को 751 से डिवाइड करना है। सो 662 को 752 था, कितना था? 752
ओके यस सर। 752 ओके 752 से सेवन डिवाइड कर फाइव दो। वन था। कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, बात सेवन सेवन फाइव फाइव टू वन ही था। था। ओके नो प्रॉब्लम, 751 था या 2 था कोई बात नहीं, मैंने 752 से डिवाइड कर दिया। तो आप ये देखो 0.88, ये देखो मेरी एक्यूरेसी 0.88। सो मतलब हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे नहीं छोड़नी है। आप इसको एक्यूरेसी को निकाल के दिखाओ, देखो इसने कहीं नहीं बताया ये बात, उसने जिसने भी किया होगा उसने सीधा एक्यूरेसी निकाल के दिखा दी। बट वाइल वी आर प्रेजेंटिंग इट, यू नो, हम इन सब चीज़ों को आप निकालो कि मैनुअली, कि और फिर एंड में ये लिखो कि हमारा जो मैनुअल डाटा है और जो हमारा प्रेडिक्टेड डाटा था, मतलब जो मशीन से निकाला गया है, बोथ आर सेम। और आप एक टेबल बना करके, ये इस तरीके का एक कंपैरेटिव टेबल बन जाएगा, और उससे तुम्हें कंपैरिजन में समझ में आएगा कि जब मैं 20-60 की रेशियो लेता हूँ, कौन सी रेशियो ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली वो रेशियो ज़्यादा बेटर होगी जिसके अंदर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आएगी। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या 2080 पे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है या 3070 पे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। तो ये एक आप एक एग्जांपल सेट कर सकते हो। दिस इज़ नाउ व्हाट वी कॉल्ड रिसर्च। अब वो आपकी अपनी है कि बिकॉज यहाँ पे तो डाटा था ना, डाटा तो कोई भी, ये ओपन सोर्स है, ये कोड ओपन सोर्स है, ये कोई भी यूज़ कर सकता है। प्रॉब्लम ये है, दो प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड के अंदर। पहली प्रॉब्लम, कुछ लिमिटेड लोगों को ही आता है इसको रन करना। नो बडी नो नो ऑल पीपल नो हाउ टू रन दिस। अब आप उन लोगों से ऊपर हो गए हो जिन बच्चों को ये नहीं आता है कि रन कैसे करते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि इसको रन कैसे करते हैं। अब कुछ आपने देखा होगा आज की डेट में मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब चल रही है, डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट क्या होते हैं? डाटा एनालिस्ट भी यही काम होता है उनके पास। उनके पास डाटा ऑलरेडी होता है, वो डाटा बनाने नहीं बैठते। डाटा उनके पास होता है, वो उस डाटा के ऊपर कुछ एनालिसिस करके, मतलब फटाफट उनको, आपको आप किसी कंपनी में जाओगे, वो कंपनी वाला कहेगा मुझे फटाफट एनालिसिस करके बता भाई इसकी कितनी एक्यूरेसी है इस डाटा के अंदर। तो वो आपके पास काम आ गया मशीन लर्निंग का। अब आप उसको कैसे करोगे साहब? आप उस डाटा को सबसे पहले जैसे यहाँ पे अपलोड करना आपको आ गया, आपने अपलोड कर लिया, और वाई दिस इज़ एन एरर। ओके, ये कह रहा, हाँ ये देखो, आज मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। ये स्टैट्स मॉडल कभी कभी ऐसा भी होगा जब कहीं आप डाटा को रन करोगे ना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे स्टैट्स मॉडल वगैरह इसमें नहीं है। तो स्टैट्स मॉडल को हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस का वो कमांड चला रहा हूँ। और कैसे, कोई भी अगर पैकेज मिसिंग हो तो आपको पिप इंस्टॉल करना आना चाहिए। पिप इंस्टॉल, ये कमांड याद कर लो। पिप के थ्रू, ये लाइनेक्स के, ये आपके पाइथन के अंदर कमांड्स यूज होती हैं। पिप इंस्टॉल्ड, और ये स्टैट्स STATS स्टैट्स मॉडल्स MODELS मॉडल्स, और इसको एंटर कर दो। जब आप इसको, सॉरी, रन कर दो इसको। जब आप इसको रन कर दोगे तो देखो ये पिप इंस्टॉल, देखो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो हो सकता है जब भी कभी आप कभी कुछ और प्रोग्राम करो तो ये ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आए, तो आपको पिप इंस्टॉल से उस पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही देखो ये इंस्टॉल हो गया, देखो ये इंस्टॉल हो गया। नाउ आई विल री रन दिस कमांड, आई विल री रन दिस फर्स्ट। सी, नाउ इट इज़ ग्रीन, मीन्स देयर इज़ नो एरर। सो इसके बाद पिप करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके ऊपर इसके हेड्स को देख रहा हूँ, हेड्स को, यस 3 के साथ आप 3 हेड्स देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालोगे तो मुझे निश्चल बताएगा। निश्चल क्या होता है अगर मैं कुछ भी नहीं डालूंगा यहाँ पे? तो निश्चल 5 आएंगे सर। हाँ 5 आएंगे, वेरी गुड। ये किसने बोला? यश। यश, यस, यश ने बिल्कुल ठीक बताया कि टॉप 5 आएंगे। और ऐसे ही टेल कमांड से बॉटम 5 लास्ट आते के हैं। 5। या वेरी गुड। यस। डिस्क्राइब हमने पढ़ लिया था, डिस्क्राइब को रन करोगे, ये पांडास कमांड्स हैं बेसिकली। तो डिस्क्राइब आ जाएगा, ड्रॉप के साथ करोगे, सिंपल। ये अभी हम आज ना एल्गोरिदम को रन करेंगे सिंपल। तो मैं सीधा एल्गोरिदम तक पहले इसको रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। दिस वी ऑलरेडी डिड। एक मिनट, मैं फटाफट फास्ट इसको वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। ये दिस फाइल आई विल शेयर विद यू ऑल, यू जस्ट रन इट सेपरेटली। आपको जो भी डाउट होगा मेरे से फिर क्लियर कर लेना, क्योंकि अभी हम ये ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे हैं। हमारा मेन मकसद है उसको एल्गोरिदम को रन करना। ओके राइट, आई थिंक यहाँ से शुरू हो जाएगा। जस्ट वेट आफ्टर दिस ग्राफ्स, या सी नाउ यहाँ पे मेन जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। आप पहले तो अगर आपको कॉलम्स के नाम देखने हैं कि आपके पास कौन कौन से कॉलम थे, तो आप यहाँ पे इंडेक्स कमांड से यहाँ पे आप इससे देख सकते हो
डी एफ डॉट कॉलम्स, तो कॉलम्स के नाम आ गए, सेक्स, मेल, एज, ये सब। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारे पैरामीटर्स लेने हैं वो तो आपको लिखना है एक्स। तो मैंने इन सब के पैरामीटर्स, ये मेरे पास एज से लेकर, देखो कॉलम से कॉलम, जब मैं ये कॉलम से कॉलम लिखता हूँ तो इसका मतलब दिस इज फ्रॉम फर्स्ट टू फर्स्ट टू सेकंड लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, सॉरी फर्स्ट टू सेकंड लास्ट। तो एज से लेकर के ये ग्लूकोज तक, इसे सारे एक्स में ले लिया, एक्स के अंदर आ गया। ये दिस इज अनदर वे ऑफ टेकिंग अ डाटा विद आई एल ओ सी। ये से लिए आप पांडास कमांड्स पढ़ लेना है करी। और वाई के अंदर मैंने क्या किया है, खाली कॉलम और -1, दिस विल चूज द लास्ट कॉलम, बाय दिस यू कैन चूज द लास्ट कॉलम। सो इसके अंदर 10 ईयर कार्डियक हार्ट डिजीज़, किसी को 10 साल से कार्डियक हार्ट 10 के चांसेस हैं, तो वो हमने वाई के अंदर चूज़ कर लिया। तो वो डाटा हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में है, कि अगर उसको है तो वो 1 है, और अगर 0 है तो उसको नहीं। तो अब हमने क्या किया, एक्स और वाई को वी आर फिटिंग दिस, जस्ट वेट, या नाउ वी आर फिटिंग इट विद 20% 2080। ये हमने क्या किया, sklearn से स्प्लिट कर लिया ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा बाय 80-20 की रेशियो करके। उसके अंदर अगर आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एक्स ट्रेन आपने देख लिया, ये आपके पास है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने फ्रॉम sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पे कॉल किया। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने कॉल किया, और उसके बाद इसके अंदर वाई प्रिडिक्ट, अब हमने y की वैल्यू प्रिडिक्ट करी है बाय पुटिंग द x वैल्यूज़। तो x की जितनी सारी वैल्यूज थी वो सारी डाल के y की वैल्यू को प्रिडिक्ट किया, तो वहाँ से हमारे पास एक एरे आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू सी, आपके पास कुछ ऐसे 0101 की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अंदर से आपको देखना है, अब देखिए ये डॉट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, ये मेन चीज़ है। इस कमांड से आपके पास एक्यूरेसी निकल के आ जाती है आपकी एल्गोरिथम की। सो वंस आई रन दिस, इट विल गिव्स यू 88.149। ओके, लेट मी क्विकली शो यू समथिंग। मैं इसको 20 की जगह अगर मैं 40 कर देता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है, लेट मी सी। अगर मैं इसको 40 करके इसको रन कर देता हूँ, यानी कि अभी 40-60 की रेशो में है। पहले कितना था, पहले था 88, अब हम अगर इसको रन करते हैं तो आया 86। सी, रिज़ल्ट चेंज आ गया आपके पास। तो आप लिख सकते हो कि भाई अगर हम उसको, अब ये आपको रिज़ल्ट मिल गया, जो हमें सब बच्चों को पता नहीं लगता कि रिसर्च पेपर में रिज़ल्ट लिखना क्या है। तो आप लिख सकते हो कि इफ़ वी स्प्लिट द डाटा इन 80-20 रेशो, that will gives you an accuracy, that will gives accuracy 0.88, means 88%. And when we use the splitting or testing data by 40-60 ratio, that will gives us accuracy 86%. So what it means, देखो बच्चे को खाली ये दो वैल्यू पता लग गई, ये बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूँ बड़ी मज़ेदार बात है। अगर आप अपने रीडर्स को ये बताओगे कि भाई 20 और 80% की जब हमने रेशो में बांटा था तो एक्यूरेसी आई 88%, और जब हमने 40-60 पे बांटा तो एक्यूरेसी कम हो गई, 86% हो गई। अगर मैं ये बात बता रहा हूँ निश्चल को या अनुराग को, तो उनको अच्छी नहीं लग रही, ये क्या बच्चों वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोलो, अब देखो 86 से 88, 86 और 88 में 88 से 86 हो गया तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? हाँ भाई, कौन बताएगा? 88 से 86 हो गया तो कितने परसेंट लॉस हुआ? बताओ भाई, मैथमेटिक्स में कौन चैंपियन है? अरे बोलो बोलो भाई, मोहम्मद आसिफ। एक चीज 88 से 86 होगी तो कितने परसेंट का लॉस हुआ? ये तो सिंपल है यार, 2% का लॉस हो गया, सिंपल है। तो हाँ, 2% का लॉस हो गया, क्योंकि ये तो चल ही 100 में रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये बोलना है, अब देखो मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इफ वी चेंज द स्प्लिटिंग ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम 80-20 to 40-60, then
our accuracy is decreased by 2%. अब ये बात जो अगर आप लिखोगे पेपर में तो लोग इसको पढ़ेंगे कि ये 2% का क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है। एनी हाउ उनको बाद में पता लग जाएगा ओके इन्होंने ये किया है। बट ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है, आपको डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है। वंशिका समझ में आया मैंने ये जो पॉइंट आपको बताया? यस सर। मतलब हमें कभी कभार ये लगता है ना कि रिजल्ट्स तो बड़े सिंपल हैं, बट हाउ टू प्रेजेंट इट, दिस इज एन आर्ट एंड दैट यू हैव टू लर्न। आप कभी भी किसी अच्छे अच्छे पेपरों को पढ़ोगे यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स कि 2% इंक्रीज हो गया जी, 3% डिक्रीज हो गया। तो लोग देखते हैं कि 2% डिक्रीज कैसे हो गया। समझ में आया? राइट। तो एक तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करो तो आप इंक्रीज और डिक्रीज में प्रेजेंट करो। सिमिलरली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसकी प्रेजेंट करो। इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखो अब ये पुरानी वाली थी 658, 188 एंड 4, अब देखो चेंज हो जाएगी। देखो 1293, 5, 202 और 1। तो अब आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को भी कंपेयर मारो कि पहले वाले के अंदर ट्रू पॉजिटिव इतना था, फॉल्स वैल्यू इतनी थी, प्रिसाइजन इतना था। एक टेबल बन जाएगी आपके पास और उस टेबल से आप इन्फ्रेंस भी निकालना। सो दिस हाउ यू कैन राइट अ रिसर्च पेपर ऑन एनी वन ऑफ द डाटा सेट। तो वो डाटा सेट अगर वो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, लाइक वी हैव सेवरल डाटा सेट, वी हैव सेवरल एग्जांपल्स, आई विल शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न इट। सो दिस हाउ आफ्टर दैट हीट मैप, ये इसको प्रेजेंटेशन है उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का ही एक अच्छे उसमें। तो उसके लिए SN हीट मैप एक कमांड होती है, इसके थ्रू जब व्हेन यू रन दिस you will have this kind of graph with you. So confusion matrix, इसके अंदर ट्रू फॉल्स ट्रू, ये सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप इसके अंदर से खुद निकालना प्रिसीजन वैल्यू, ये वैल्यूज, क्योंकि सब आसान है, आप कमांड्स ढूंढ करके लगाना। नाउ आई विल एट द एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग मोर। लाइक अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था वी हैव दीज काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम विद अस। तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे आपको इसका वो मिल जाएगा, आपको इसका कोड मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब उस कोड के अंदर क्या करना है, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है। तो सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये ROC होता क्या है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे तो आपको शॉर्टकट में बताया है, बट आई विल टेक योर क्लास इन द डेप्थ आल्सो। उसके अंदर आपको F मेज़र क्या है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप उसको अपना बेस बना करके उस रिसर्च पेपर के रिजल्ट में ऐड कर सकते हो। इन द सेम वे आई थिंक अनुराग जो है वो नेटवर्किंग की फील्ड में काम करता है। और अब अनुराग तेरे को समझ में आ रहा होगा कि रिजल्ट का क्या मतलब है, जो मैं उस दिन बोल रहा था ना तेरे से, तुमसे जो बात हो रही थी। रिजल्ट का बेसिकली मतलब यही होता है कि और जब तक ऐसे इनोवेटिव रिजल्ट नहीं डालोगे ना कि ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट है, जब तक तुम ऐसे नहीं डालोगे तब तक वो रिसर्च पेपर नहीं कहलाएगा। और यही डिफरेंस होता है एक बुक चैप्टर के अंदर और एक रिसर्च पेपर के अंदर। एक रिसर्च पेपर के अंदर हमारी, हाँ बताओ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये जैसे मैंने एक नेटवर्क सिमुलेशन पे करा था, हाँ, तो मेरा वर्क जो हुआ वो लास्ट में कंक्लूजन बेस पे निकला कि वो अभी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है सर। जो प्रोटोकॉल था, हाँ, तो वो क्या मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या इज इट गुड? उसके लिए कैसे प्रेडिक्ट, मैं बताता हूँ। वेरी गुड। अनुराग ये कह रहा है कि जो वो चीज़ प्रिडिक्ट करने जा रहा है वो अभी प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। वो लैक ऑफ रिसोर्सेज तेरे साथ है कि वो वर्ल्ड में भी नहीं बने? सर वर्ल्ड में भी नहीं बने सर, नई ट्रैक है। नो सी अब तुम, ये है तो एक तरह का नेगेटिव पॉइंट, बट इस नेगेटिव पॉइंट को भी तुम अपने फेवर में कैसे ले सकते हो। आप यही बताओ कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ये रिजल्ट आया, बट जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहा हूँ तो प्रोबेबली दिस विल गिव्स गुड रिजल्ट। और उसको तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर दे कि थ्योरेटिकली वो इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, बट it is not feasible yet because of the lack of the resources। इतना ही नहीं, फिर तेरे को ये भी बताना है कि वो रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए। जैसे कि लेट अस सपोज
तेरे पास अभी प्रोसेसर की लिमिट मेरे ख्याल से अड़ंगा कर रही होगी, यहाँ पे आज की डेट में 1.5 गीगाहर्ट्ज़ है, जब सॉरी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है, तेरे को ये मिल जाए 5.5 गीगाहर्ट्ज़ या 6.5 गीगाहर्ट्ज़ जो कि इन फ्यूचर आएगी, तो जो चीज़ तू कह रहा है वो प्रैक्टिकली फिजिबल हो जाएगी। सो दिस हाउ दिस इज आल्सो अ रिसर्च पेपर, दिस इज आल्सो अ रिसर्च पेपर, और तुम इसको अच्छे से लिख सकते हो। इनफैक्ट मैंने आपको बताया ना, देखो खाली ये बोल देना कि फ्यूचर में होगा वो गलत है। फ्यूचर में कब होगा, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा, ये भी तेरे को आज की डेट में प्रेडिक्ट करना है। यस तो मैंने मेंशन कर दिया था सर ये लास्ट में आपने। यस राइट। एनीबॉडी, एनी अदर क्वेश्चन? इफ समबडी यू आर नो ट्राइंग टू राइट समथिंग, यू जस्ट डिस्कस इट। और एक दो बातें और सुनो। Earlier what will happen, the workshops and conferences are conducted basically for exchange of knowledge, but nowadays the trends are just opposite to that. We are conducting the workshops and the conferences not for a knowledge, just to कुछ हम अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। People are just go for a conference just to gain the certificate and to just for a meeting to the other people for a networking, rather than and just for the good lunch. So वो चीज़ें अगर पहले ज़माने में क्या होता था, जब ये आइंस्टीन थे, जब ये कुछ नई चीज़ निकाल लेते थे ना, तो कॉन्फ्रेंस का मतलब इनका ये होता था कि लेट्स कॉल एवरीबडी एंड शो देम कि ये देखो जी हमने ये किया है, और इफ़ दे हैव अ सर्टेन डाउट्स देन वी विल डिस्कस इट, ये होता था। आज की डेट में कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, हमें पेपर चाहिए, पैसे चाहिए, आप उस कॉन्फ्रेंस को करो, बस दैट्स इट। तो मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा, बट येस many not few, many of the conferences across the world or across the Asia particularly, this thing is happening. So I'm very frustrated sometimes कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हो रहा है, हम भी we are also a part of that, तो क्या करें इसमें। लेकिन आपको मैं बताऊं, जर्नल में पेपर पब्लिश करने से अच्छा you should have when I was at your age, तो मैंने कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी अटेंड करी हैं और उसमें पेपर को जाके प्रेजेंट किया है। वहाँ पे क्या होता है, एक तो लाइक माइंड मिल जाते हैं। लाइक माइंड मीन्स आप जब पेपर प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑडियंस जो बैठी हुई है वो सेम ऑडियंस बैठी है जो कि इंटरेस्टेड है उसके अंदर। तो समटाइम्स दे विल आस्क यू सम सो गुड क्वेश्चन कि वो आपके दिमाग में पहले आया ही नहीं, एंड यू विल गेट अ हिंट टू गेट स्टार्ट फर्दर इन योर रिसर्च। तो मैं आपके जैसे बच्चों को यही सलाह दूंगा कि आपको पहले रिसर्च पेपर्स को कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्रेजेंट करो, और कॉन्फ्रेंसेस भी वो जो कि आपके रिलेटेड हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड है। पता लगा कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे आप मशीन लर्निंग प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो ये दिस इज एंड वो लोग भी पता क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे ट्रैक डाल देते हैं। उन ट्रैक्स में जाके पेपर को प्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंट करो जो कि सोल आपके थीम पर आधारित है। जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहीं पे हो रही है, तो आप वहाँ पे जा करके पेपर को प्रेजेंट करो, और डरो मत, बिकॉज यू आर द होल सोल ऑफ योर पेपर। यू नो ओनली what you did in your paper, we don't know anything. So if somebody asks you a cross question, you are the one and only one who can speak on that particular question. Or if you find some good questions, that will give you a boost to further to enhance your research. तो और दूसरा, आप अपने दोस्तों में शेयर करो नॉलेज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कर रहे हो, इट शुड बी जैसे हमें पता है अनुराग जो है वो नेटवर्किंग में कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा, क्योंकि वही बच्चा आपका टारगेट ऑडियंस है। जैसे अगर कोई और बच्चा इसमें नेटवर्किंग में काम करना चाह रहा है, तो उसको पता है ना यार कि मेरे को वंशिका से बात करने से कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका ये एरिया नहीं है। हाँ, अनुराग से बात करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो अनुराग से ही बात करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। जैसे कई बच्चों का डेवलप हुआ है अभी सर हमें एआई में ही काम करना है, तो एआई आज की डेट में एआई नहीं रहा। एआई जो है वो कन्वर्ट हो गया है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबको ही बोला जा रहा है।
और ये एक सिंगल फील्ड नहीं है, इसके साथ बहुत सारी फील्ड एसोसिएटेड है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, IoT भी एक इसका पार्ट है। मशीन लर्निंग जो है वो हर जगह यूज़ हो रही है। कल अगर आपने देखा हो तो मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था कार्बन फुटप्रिंट, वो एक बहुत ही अच्छा मुझे वो लगा। वो भी मशीन लर्निंग पे बेस्ड एक वेबसाइट है। उसके अंदर क्या है कि अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप जरूर देखना, वो अब पब्लिश हो चुकी है। उसके अंदर मैंने क्या दिखाया है आपको कि हाउ कैलकुलेट योर ओन कार्बन एमिशन। हमारा कितना कार्बन एमिशन है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है, आपको पता है इस वर्ल्ड के अंदर द पॉल्यूशन इज बेसिकली ड्यू टू the carbon, increase of carbon, or the greenhouse effect gases. So greenhouse effect gases and carbon, these are basically responsible for the pollution and for the global warming. So if somehow आपको ये पता लग जाए कि निश्चल या अनुराग या वंशिका या यश या जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, if we are conscious about that, so or if somebody tells us कि you emitted this much carbon and which is very very bad for our future generation, so definitely we will, since we all are educated, so we took some measures कि यार हाँ मुझे कम करना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आपको ये पता होगा कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब आपका एक तरह का सिंबल बन के आता है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना, और अपना सब बच्चे कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट करना कि वो कार्बन फुटप्रिंट मेरा कितना आ रहा है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस वर्ल्ड में कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो। और फिर वो कैसे कर रही है ऐप, वो जो वेबसाइट थी वो कैसे इसे कैलकुलेट कर रही है। बैक एंड में बेटा उसने सारे वो फॉर्मूले डाले कि इतने परसेंट चीज़ को यूज़ करने से इतना कार्बन एमिट होता है, इतने परसेंट चीज़ को यूज़ करके इतना कार्बन एमिट होता है। तो एनी हाउ इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ कैलकुलेटर टाइप ऑफ काइंड ऑफ थिंग दैट इज वी कैन से, बट वी कैन मेक दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एज एन स्मार्ट वेबसाइट। अभी तो वो क्या कर रहा है, एज ए कैलकुलेटर यूज़ हो रहा है, उसके अंदर कुछ फिक्स पैरामीटर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करके वो आपको रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो एक तरह का एक खिलौना है, it is a just kind of toy. But if you impose a machine learning with that, because definitely when you put the entries you will have certain datas. So when you have certain data with you, definitely you do certain machine learning, you can perform on that and make the prediction more accurate. Because अभी क्या हो रहा है, अभी वो सबके लिए जनरलाइज दे रहा है, फिर वो आपके लिए पर्टिकुलर देगा कि हाँ रियलिटी में क्या है। तो ये एक आइडिया मैंने फ्लोट किया है कल कि यस दिस इज़ अ रिसर्च एरिया वेयर द स्टूडेंट कैन डू रिसर्च। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जिस बच्चे ने उसको अगर चूज़ किया तो ये बहुत बड़ा हिट जाएगा, क्योंकि एवरीबडी नाउअडेज कॉन्शियस अबाउट देयर लाइफ। तो कार्बन और ये कार्बन फुटप्रिंट इज इट इज़ नॉट अ न्यू टेक्निक, बट येस this is something which is required by everybody. So if anybody you are good in making apps, तो आप इसकी एक ऐप बनाओ, उसके अंदर ऐसे ही इसको ऐड कराते हुए इसके साथ मशीन लर्निंग को एसोसिएट करो, और अगर आप कर देते हो तो आई थिंक यू विल डिजर्व अ ट्रीट फ्रॉम माई साइड, नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड बट डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब इन दिस फील्ड। तो आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ। मैंने आपको एक एरिया दे दिया कि कार्बन फुटप्रिंट के साथ एक मशीन लर्निंग की डिवाइस कैसे बना सकते हैं, और मैं भी इसके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ और मेरे साथ और कई सारे लोग हैं, तो आपको भी मैं अपनी टीम में ले लूँगा। आप इसके ऊपर काम करिए। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू कैलकुलेट अ कार्बन फुटप्रिंट विद अ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो कल किसी ने कोई वीडियो देखा था, जैसे किसी ने देखा था, किसी एक ने भी? सर आई सॉ इट। ओके, जाशवी सृष्टि, हाँ सृष्टि ने देखा है तो अच्छा है, इसको आप इसको करो। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग सोचते हैं IIT या नहीं सब करेंगे या वो ही सब करेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू वी स्टार्टेड वर्क डेफिनेटली वी विल केम अक्रॉस समथिंग। तो आप उसको सोचो कि उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है। लीनियर रिग्रेशन से ही आप काम कर लो उसके ऊपर, तब भी एक कार्बन फुटप्रिंट से आप चीज़ों को कर सकते हो। जिसका कार्बन फुटप्रिंट बड़ा है तो भाई उसको कैसे मेजर्स देने हैं वो आल्दो उसमें आ रहा था,
उस वेबसाइट में भी आ रहा था, लेकिन मेजर्स के वो एक पर्टिकुलर चीज़ें दिखा रहा था। आप तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दो ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ यार इसके अंदर ये भी हो सकता है। तो वो इट्स अप टू यू, आप कैसे बनाओगे। मैंने आइडिया आपको दे दिया है, तो आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हो और ये आपका मेजर प्रोजेक्ट में भी, थीसिस में भी काउंट हो जाएगा। तो अब आप एक ग्रुप बना करके इसके ऊपर काम करना शुरू करो। सो दिस इज़ वन। और एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी, or otherwise I am stopping recording first.